السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو ہم ان تمام مقامات کی زیارت کرائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والوں نے ظلم ڈھایا تھا، پتھر مارے تھے، اور تھک ہار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ کے باغ میں چلے گئے۔ وہ تمام مقامات، وہ باغ بھی دکھائیں گے، وہ تمام پتھر دکھائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے اور ساتھ میں درود شریف بھی پڑھتے رہیے تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں نبی کی شفاعت قبول ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ والسلام۔ زیادہ مشکلات اس سفر کے دوران آپ علیہ السلام کو پہنچی تو یہ اندر جو آپ کے بائیں سائڈ پر اندر باغ ہے، وہ باغ عتبہ اور شیبہ والا وہ باغ ہے جہاں پر آقا علیہ السلام حاجی صاحبان اپنے بائیں سائڈ پر وہ باغ اندر دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا جہاں سبحان اللہ، اس کے اندر ایک مسجد ہے، سفید کلر کی چھوٹا سا مینار ہے، وہ مقام ہے جہاں پر حضور علیہ السلام زخمی حالت میں بیٹھے تھے، اور اسی جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھائی جان سائڈ پہ یہ بھی دیکھ لیں، وہ مسجد عباس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چکر ہم اور لگائیں گے انشاءاللہ، یوں ٹرن کر کے دوبارہ بھی آپ کو یہ زیارت کروائیں گے، اور آگے ہماری زیارت جو ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس زیارت کو بھی آپ انشاءاللہ کریں جہاں پر آقا علیہ السلام نے نماز ادا کی تھی اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو جو باش لڑکے آقا علیہ السلام کے پیچھے لگے ہوئے تھے انہوں نے ان کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی تھی، وہ پتھر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائے جائیں گے۔ آپ کے دائیں سائڈ پر نیچے جب ہم چڑھائی سے نیچے اتریں گے، آپ کے دائیں سائڈ پر بالکل پہاڑ کے دامن میں وہ مسجد ہے، پتھروں سے بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، کوئی مینار وغیرہ نہیں ہے اس کے اوپر، اور وہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں انہوں نے آرام کیا تھا اور 2 رکعت نماز بھی ادا کی تھی، اور وہاں پر جو مسجد ہے اسے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ بھائی جان یہ مسجد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حاجی صاحبان اس مسجد کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اہم اوپر پہاڑ کے درمیان میں جو ہے وہ 2 پتھر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جب آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت آقا علیہ السلام کے اوپر یہ پتھر گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہاڑ کے درمیان میں 2 بڑے پتھر ہیں حاجی صاحبان، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کوئی قرآن اور حدیث کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں ہم نے سنا کوئی چھوٹی سی مسجد ہے، اللہ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت وہ نوجوان گرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے اشارے سے کہا اگر اللہ کے حکم سے آ رہی تو بسم اللہ وہیں پر رک جائیں، تو وہ 14 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنی اصل حالت میں وہیں پر رکے ہوئے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی نیچے آنے والے، لیکن وہ اپنی جگہ پر رکے ہوئے۔ امام حاجی صاحبان نے اس مسجد کی زیارت کر لی، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ چھوٹی سی مسجد ہے اور اس مسجد کو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ ہم کر کے آئیں گے، دوسری طرف سے آپ کو بالکل صاف نظر آئیں گے۔ تو حاجی صاحبان یہ آپ کے بائیں سائڈ پر جو باقی ہے جو گھر مبارک ہے، حاجی صاحبان یہ آپ کے بائیں سائڈ پر جو جگہ ہے یہ اندر جو اس وقت کے سردار تھے وہ یہاں پر رہتے تھے، ان کے محلات وغیرہ تھے، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے پیچھے جو نوجوانوں کو لگایا تھا یہ وہی وادی ہے، یہی وہی راستہ ہے، اور اس راستے سے ہوتے ہوئے آقا علیہ السلام آگے کی طرف گئے تھے، اور یہ وہ وادی ہے۔ ان دو جو آمنے سامنے کے پہاڑ، ان پہاڑوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، ان کو مٹا دیا جائے، لیکن آقا علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے دعا کی۔ یہ آپ کے ابھی رائٹ سائڈ پر ہے، اور یہ وہ وادی ہے ان سرداروں کے گھر ہی جو اس وقت کے سردار تھے، عبد یعلل، حبیب اور مسعود وغیرہ، اور یہ ادھر عباد رہتے تھے۔ یہاں پر آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت و تبلیغ کی، اور اسی راستے سے جاتے ہوئے آپ علیہ السلام کو انہوں نے پتھر مار مار کے زخمی کیا تھا۔ تو ان جگہ کی آپ نے زیارت کی، آج دوبارہ بھی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے ہیں۔ آپ کے بائیں سائڈ پر آئے گی، اور اوپر آپ 2 بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں جو جیسے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے ابھی نیچے آنے والے ہیں، وہ سامنے 2 پہاڑ ہیں۔ آپ کے بائیں سائڈ پر آپ ان پہاڑوں کی زیارت
कर सकते हैं हाजी साहबान, और मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी दोबारा कर सकते हैं। वो दरमियान में दो बड़े बड़े पत्थर हैं, उन पत्थरों के बारे में ये कहा गया, यह मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ऊपर इन दो बड़े बड़े पत्थर हैं। हाजी साहबान, ये मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, उन पत्थरों की ज़ियारत की जिनके बारे में ये कहा गया कि उस वक्त वो नौजवान नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी हाजी साहबान आपके दाएं साइड पर एक मस्जिद आने वाली है जिसे मस्जिद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा गया। हाजी साहबान थोड़ी तोड़ते करना, ये आगे थोड़ा मस्जिद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो इस्लाम की सबसे पहली मीनार वाली मस्जिद है, उसे मस्जिद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। आप ये बिल्कुल पहाड़ के दामन में है, पत्थरों से बनी हुई है, छोटी सी मस्जिद है, और इस मस्जिद की आप ज़ियारत करें। ये इस्लाम की सबसे पहली मीनार वाली मस्जिद है। ये आपके सामने आपके राइट साइड पर मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आएगी, बिल्कुल पहाड़ के दामन में है, और इस मस्जिद को मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। ये इस्लाम की सबसे पहली मीनार वाली मस्जिद है। हाजी साहबान इसकी आप ज़ियारत कर सकते हैं, मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। आपके राइट साइड पर छोटी सी पत्थरों से बनी हुई मस्जिद है, इसके ऊपर मीनार भी है, और ये इस्लाम की सबसे पहली मीनार वाली सबसे पहली मस्जिद है। हाजी साहबान ये मस्जिद अली की ज़ियारत आप करें। तमाम हाजी साहबान अपने राइट साइड पर देखें मस्जिद अली। तमाम हाजी साहबान मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत करें। ये इस्लाम की सबसे पहले मीनार वाली मस्जिद है। तमाम हाजी साहबान, कोई भी हाजी साहबान ऐसा ना रहे जो इस मस्जिद की ज़ियारत ना करे। तमाम हाजी साहबान इस मस्जिद की ज़ियारत करें। ये असल में यहाँ पर उतारना ममनू है, क्योंकि हज के मौके पर यहाँ कुछ हाजी साहबान इसके मीनार के ऊपर चढ़ के गिर के जख्मी हो गया। तो उसके बाद जो इंतजामिया उसने मुश्किल की हुई है, यहाँ पर उतारना ममनू है। 50,000 रियाल तक गिराना देते हैं, यहाँ अगर हाथी को उतारा जाएगा। तो आपके लेफ्ट साइड पर जो अंदर आपको पूरा बाग नजर आ रहा है, ये वही बाग है अकबा और शेबा का, जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में बैठे थे, और वही मस्जिद है मस्जिद अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम यू टर्न लेके दोबारा वहाँ आएंगे और उस मस्जिद की दोबारा ज़ियारत भी करेंगे, और मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करेंगे। फिर हम इंशाअल्लाह आगे की तरफ निकलेंगे। तो इस बाग की ज़ियारत कर लें, यहाँ दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी हर जो है हाजी साहबान अपनी ज़बान पर जारी और सारी रखें। हज़ूर अलैहिस्सलाम को अक़ीदतन तोहफ़े के तौर पर आप दुरूद शरीफ भेज सकते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम आज रबीउल अव्वल का महीना भी है, उनकी विलादत का दिन भी है 12 रबीउल अव्वल को, और यहाँ पर आप दुरूद और सलाम उनके ऊपर करें और दुरूद और सलाम उनको तोहफ़तन हदियतन पेश करें। हाजी साहबान, ये ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन जो तकलीफ दह सफ़र था आप अलैहिस्सलाम का, इस ताइफ के सफ़र के दौरान हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ कब हुई? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ ज़िंदगी के अंदर जब ताइफ के सफ़र के दौरान मैं ताइफ गया, तो ताइफ वालों ने मुझे जो चोटें पहुँचाई, ज़ख्मी किया, और मेरे साथ जो तकलीफ के मामला किया, उसमें सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में मुझे तकलीफ ताइफ के सफ़र के दौरान पहुँची। तो आप अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा कि जंग उहद के सफ़र आप अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हुए थे, शायद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होगा। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इस उम्मीद के साथ ताइफ तशरीफ़ लेकर आया था कि ताइफ वाले मेरी बात को मानकर ईमान लाएंगे और इस्लाम कबूल करके मेरे साथी बन जाएंगे। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के बचपन में ताइफ में गुजरा था, तो कुछ ख़ानदान जो थे वो हज़रत अलैहिस्सलाम के ननिहाल के तौर पर पकाए जाते थे। वो इस उम्मीद के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए थे कि ताइफ वाले इस्लाम कबूल करेंगे और मेरे साथ मिल जाएंगे, और हम कलमे को पूरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त ताइफ वालों ने आप अलैहिस्सलाम की बात को न माना, और यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी।
से बाद अभी आप दोबारा अपनी बाएं साइड पर लेफ्ट साइड पर आप उस जगह की ज़ियारत कर सकते हैं जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हालत में बैठे थे और वहाँ पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ पर इस्लाम कबूल किया था। दोबारा आप उस मस्जिद की और उस बाग की ज़ियारत कर सकते हैं। वो मस्जिद अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते भी तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था अगर आप चाहते हैं तो इन पहाड़ों को मिलाकर इन बस्तियों को नेस पे मजबूत कर दिया जाएगा, क्योंकि इतनी तकलीफ थे, उन्होंने इतनी तकलीफ पहुँचाई थी आका अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेज दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो इनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया बल्कि इनके लिए दुआ की। हाजी साहबान, ये मुक़द्दस मकामात हैं जो अपनी ज़िंदगी में आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे दावत तबलीग के सिलसिले में, दीन की पैदाश के सिलसिले में, और आका अलैहिस्सलाम को यहाँ दीन के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँची थी। ये पूरा जो बाग है ये वही बाग है उतरा और शेरों वाला जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। तो अभी आप दोबारा मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कर सकते हैं और अपने दाएं साइड पर आप देखेंगे वो मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है, पत्थरों से बनी हुई मस्जिद है और उसे मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा की थी और यहीं पर आका अलैहिस्सलाम के ऊपर पत्थर गिराने की कोशिश की थी और ये वही रास्ता है जिसके दोनों साइडों पर उस वक्त वो नौजवान खड़े हो गए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्होंने पत्थर बरसाए और आका अलैहिस्सलाम जख्मी हुए। हाजी साहबान, अगर कोई भी बस वाला अगर उतारता है हम भी उतारेंगे, वरना कैसे उतारेंगे? कोई भी गाड़ी वाला नहीं उतारता है। छोटी गाड़ी नहीं आया, गाड़ी वाला बात किया होगा उनको उतार के वापस आएगा ले जाएगा। कोई भी गाड़ी वाला बस वाला आपको हाजी नजर आता है उतारा हुआ तो हम लाजमी उतारेंगे, वरना हम कैसे उतारेंगे? ये एक गाड़ी वाला भी ऐसा नहीं है जिसने हाजियों को उतारा हो। जब से रुका था ना बस वाला, हाजी साहबान, ये वो मकामात हैं जहाँ पर ये ममनू जगह है हाजी साहबान, जहाँ उतारने की जगह हम उतारते हैं, मुश्किल नहीं है हमारे लिए। ये हुकूमत की तरफ से यहाँ मना है हाजियों को उतारना। मैंने आपको पहले बताया आज के मौके पर यहाँ हम हाजियों को उतारते थे। कुछ हाजी साहबान जो है वो अपनी मर्जी के साथ उस मीनार के ऊपर चढ़े, वहाँ से गिर कर जख्मी हो गए, तो उसके बाद हुकूमत ने यहाँ पर उतारना ममनू कर दिया और गाड़ी वाले को 5000 रियाल का जुर्माना दे देते हैं और गाड़ी को भी बंद कर देते हैं, हाजियों के साथ ले जाते हैं वहाँ थाने के अंदर पूरा दिन खड़ा करके उनको भी जलील करते हैं, हमें भी जलील करते हैं और गाड़ी वाला बेचारा भी 5000 रियाल का जुर्माना कर देते हैं। तो इसलिए ये जो ज़ारात है ये गाड़ी के अंदर ही करवाई जाती है। कोई भी गाड़ी वाला यहाँ बस वाला खासकर यहाँ कोई भी गाड़ी से नीचे नहीं उतारता। तो ये जो मकामात है इस जगह पे आने का मकसद जो हमारा है मुसलमानों का, एक तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना है और दूसरा इस सफर के दौरान जो आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई है तो उस तकलीफ को अपने दिल के अंदर दर्द महसूस करते हुए अपने ईमान को तक़वियत पहुँचाना है और ये ऐद करना है कि हमें भी अगर जिंदगी के अंदर दीन के लिए, इस्लाम के लिए अगर कोई तकलीफ पहुँचेगी हम साबित कदम रहेंगे और उसके मुकाबला करते हुए अगर वक्ती हमें दावत तबलीग का फ़ायदा न हुआ तो आने वाले वक्त में लाज़मी फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हम ये इरादा रखते हैं कि हमें भी दीन और इस्लाम के लिए इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को आगे दीन के लिए वक़फ़ करेंगे और सहाबा की तरह सहाबा वाला ईमान रख के अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी दीन और इस्लाम के लिए कबूल फरमाए और हमसे भी दीन का काम ले। तो ये हमारे लिए बात से फ़ख्र वाली बात होगी। तो इंशाअल्लाह हम अभी जो जा रहे हैं वापस मीकात की तरफ जा रहे हैं और मीकात पर हम जब पहुँचेंगे इंशाअल्लाह वहाँ आपको टाइम मिलेगा, जहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह है, जहाँ जहाजियों को उतारने की जगह है वहाँ हम लाजमी उतारते हैं। ऐसा
कोई मसला नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर ममनू एरिया है वो मेरी और आपकी बात नहीं है, ये जो सऊदी गवर्नमेंट है उसका मामला है। तो वो वहाँ उतारने नहीं देते, तो इसलिए जहाँ उतारने की जगह है वहाँ उतारेंगे, जहाँ उतारने की जगह नहीं है वहाँ नहीं उतारेंगे। ये ज़ियारत हमने आपको पिछली बार इंशाअल्लाह करवा दी। बाकी अभी हम मीकात से ihram बांध के, तो मीकात से ihram बांध के दोबारा मक्का मुकर्रमा की तरफ जाएंगे। ये जो हमारी ताइफ की ज़ियारत थी ये मुकम्मल हो गई है इंशाअल्लाह। बाकी अभी मीकात पर पहुँच के बाकी जो है ihram बांध के 2 रकात नमाज नफल और नमाज ज़ोहर अदा करनी